خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اسلامی معاشرے میں جہاں اللہ پاک کی عبادت کرنے، دین اسلام کے فرائض پر عمل کرنے کا درس دیا جاتا ہے، ساتھ ہی ناپ تول کا خیال رکھنے، غریبوں کی مدد کرنے، اچھے اخلاق سے پیش آنے، دوسروں کو تکلیف نہ دینے کا بھی ذہن دیا جاتا ہے۔ امیر اہل سنت سے عرض ہے، کیا ان کاموں کو کرنے سے پہلے بھی نیت ضروری ہے؟ ظاہر ہے کہ جو بھی اچھا کام ہے اس میں نیت کریں گے تو اس کا ثواب ملے گا، نیت نہیں کریں گے تو پھر ثواب نہیں ملے گا۔ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اچھی نیت ہوگی ثواب ملے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہم اس سے پہلے مدنی مذاکرے میں بھی اور مختلف سلسلوں میں ایک مسئلے پر بات کرتے رہے ہیں۔ اخبار میں جو ایک خبر آئی ہے، میں چاہ رہا تھا کہ اس پر آج ایک بار پھر امیر سنت کی طرف سے کچھ مدنی پھول ملیں۔ یہ جو خبر ہے یہ آپریشن کے ذریعے بچوں کی پیدائش کے حوالے سے ہے، اور اخبار جو ہمیں معلومات فراہم کر رہا ہے کہتے ہیں کہ گزشتہ 15 برسوں سے لاسٹ 15 ایئر اس میں خطرناک حد تک اضافہ ہوا ہے، اور لکھتے ہیں کہ اعداد و شمار کے مطابق صرف 2015 میں 3 کروڑ بچوں کی پیدائش آپریشن کے ذریعے کی گئی، جو اس سال پیدا ہونے والے بچوں کا 21% اس کی مدد بنتی ہے، اور ان میں سے تقریباً 44,55,000 44,55,000 بچوں کی پیدائش میں آپریشن کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ تو اس میں یہ ہے کہ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ لاکھوں خواتین غیر ضروری طور پر آپریشن کے مرحلے سے گزر کر خود کو خطرے میں ڈال رہی ہیں۔ اب یہ ایک سمجھیں کہ ایک ہوش ربا فیگر ہے، اور اس کی وجہ سے بہت ساری مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بابا بعض صورتوں میں عورت کے لیے آپریشن کی حاجت پیش آتی ہو، لیکن شاید آپ نے بھی زندگی میں اتنے آپریشن کے ساتھ پیدائش کا سلسلہ نہ سنا ہو۔ تو اب اس میں کس کو زیادہ سمجھایا جائے؟ ڈاکٹر کو، کیونکہ سمجھ میں ڈاکٹر کا ہی آتا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ یہ یا تو میڈیکل انسٹیٹیوشن جو ہوتے ہیں، جو ہسپتال یا دواخانے ہوتے ہیں، کچھ ان کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، جو ڈاکٹرز کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ اب تو ڈیلیوری کیس کے اندر باقاعدہ ڈاکٹر کے لیے یہ بھی جانچا جاتا ہے کہ اس کی کوئی ہسٹری نکالی جاتی ہے کہ یہ جو اس کے یہاں جو ڈیلیوری کیس ہوتا ہے وہ آپریشن کے ذریعے زیادہ ہوتا ہے یا نارمل ڈیلیوری زیادہ کروا لیتی ہے۔ تو ایسی صورتحال کے اندر کیا کرنا چاہیے؟ اصل پہلے جب
मेरा लड़कपन था जैसे, उस वक्त तो ऑपरेशन का नाम नहीं सुना था। अरे सब के सब नॉर्मल डिलीवरियां होती थी और हॉस्पिटल भी जाने की जरूरत नहीं रहती थी। आमतौर पे डिलीवरियां घरों पे होती थी। ये मिडवाइफ जिसको बोलते हैं, तो दाया मिडवाइफ, तो ये घरों पे आती थी और ये ऑपरेशन के बगैर, ऑपरेशन इनको कहाँ आता होगा, ज़ाहिर है वो घरों पे तो ऑपरेशन हो नहीं सकता, तो ये नॉर्मली डिलीवरी होती थी। इनके अपने तजर्बात होते थे। यहाँ तक कि मुझे एक हिकायत याद आई, किसी ने बताई थी कि एक गैर मुस्लिम दाया थी, वो अपने किसी केस में डिलीवरी नहीं हो रही थी और बहुत दुश्वारी थी, तकलीफ थी, तो उस दाया ने जो उस कमरे के दरवाजे से बाहर निकलकर इस तरह कहा कि मुसलमानों के गोश्त-पाक, मैंने सुना है कि आप अपने मुरीदों की मदद करते हैं, तो मैं तो मुसलमान नहीं हूं, लेकिन ये मुसलमान है, ये औरत, और ये आपकी मुरीदनी है, आपके मानने वाली है, और इसका मसला हल नहीं होता, आप इसका मसला हल कर दें। इस तरह उसने कहा। अंदर आई तो नॉर्मल डिलीवरी हो गई। तो वो दाया जो थी वो ये करामत गोश्त-पाक की देखकर मुसलमान हो गई। अब ये मुझे शायद याद पूरा नहीं है कि जिसने वाकया बताया उस दाया से मेरी फोन पर बात करवाई थी या क्या। यानी एक अपने इस्लामी भाई ने मुझे अपना कुछ तजर्बा टाइप का बताया था। तो पहले ये माहौल था, हॉस्पिटलों में इस तरह के नहीं होते थे। अच्छा, अब रफ्ता रफ्ता ये हॉस्पिटल का रास्ता लिया। अब हॉस्पिटल के इखराजात होते हैं, करोड़ों रुपए इखराजात होते हैं। अच्छा, फिर ये कि तनख्वाहें भी जैसी तैसी होती हैं। अच्छा, फिर जो ऑपरेशन करेगा या करेगी उसका अपना अच्छा खासा उसमें हिस्सा होता है। तो यूं ये प्रोफेशन के तौर पर आजकल ज्यादातर ऑपरेशन मैं समझता हो रहे हैं। नहीं, यहाँ तक कि मेरे पास ऐसे केस आए हैं अपने अतराफ के इसाई भाइयों के, कि जैसे कि एक ने कह दिया कि ऑपरेशन होगा, तो दूसरे ने कहा, यानी दूसरी में लेडी डॉक्टर हमारे यहाँ ज्यादा होती है, तो एक ने कह दिया कि भाई तो ऑपरेशन होगा, फिर डराती भी है कि जान का खतरा, फिर मत बोलना। तो वो बंदा छुरी तैयारी रहती है इनके पास कि तैयार हो जाए। तो दूसरी जो थी उसने बगैर ऑपरेशन के वो कर दिया कि नहीं ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, मैं कर देती हूँ। तो अब वो जो जिसने ऑपरेशन का कहा था सर, उसकी इंसल्ट हुई, ये उससे बिगड़ी, ये तुमने क्यों किया। अच्छा, इसी तरह का एक केस और कि एक हॉस्पिटल में गए तो वही ऑपरेशन और इतनी रकम लगेगी। ये घबरा कर दूसरी हॉस्पिटल में गए तो उसने कहा कि उससे ज्यादा बताया, ऑपरेशन से ज्यादा रकम ली, बताई कि इतना खर्चा होगा, हम नॉर्मल डिलीवरी कर देंगे। तो वो ज्यादा पैसे लेकर उसकी नॉर्मल डिलीवरी कर दी। तो ये मतलब बिजनेस चल रहा है। ये मेरे बिल्कुल अतराफ के मुझे वो याद भी आ रहे हैं कोई कि जिनके साथ ये केस हुए, कि मतलब एक ने कहा कि ऑपरेशन, दूसरे ने कहा इतने पैसे दो, तो बगैर ऑपरेशन। तो ये मतलब लोगों की जानों के साथ ये खेल रहे हैं। चोर बुरा, डाकू बुरा, सब इनको बुरा वाला बोलते हैं। ये हकीकत में ये इन सबसे बुरे डाकू हैं जो लोगों की जानों से खेलते हैं, लेकिन सब ऐसे नहीं है। इसमें आपको रहमदिल भी मिलेंगे। जैसे कि वो दो का केस बताया ना कि एक ने कहा ऑपरेशन होगा, दूसरी ने कोई ज्यादा पैसे नहीं लिए थे, शायद उसने वही खौफे खुदा की वजह से नॉर्मल डिलीवरी कर दी थी, ऐसा मुझे शायद। तो उस पर वो बिगड़ी थी कि तूने मेरा गाहक क्यों खराब किया। तो इस तरह मतलब ये कि ये लोगों की जानों से खेलते हैं। ये मतलब सफेद पोस्ट डाकू हैं। डाकू से कोई बड़ा लक़ब मेरे पास है ही नहीं जो मैं इनको दूं, कि इसमें बंदा मर भी जाए ना, ऑपरेशन फेल हो गया, केस खत्म हो गया, एक्सपायर हो गया, कोई इनका बिगाड़ तो सकता नहीं है। ये पहले से लिखवा लेते हैं, जान हर ऑपरेशन में पहले से लिखवा लेते हैं कि अगर ये फोत भी हो गया तो हमारी तरफ से कुछ नहीं,
इनका जो भी सरपरस्त होगा वो साइन करेगा, और ये सब एक फॉर्मेलिटी है हॉस्पिटल में, और ये अच्छी फॉर्मेलिटी है ताकि झगड़े ना हो। लेकिन दियानतदारी के साथ ऑपरेशन किया जाए तो बददियानतियां हो रही हैं, लिखवा भी लेते हैं, के बाद हद भी होती है, तो कोई इन पर केस भी करेगा तो जीतेंगे यही, केस करने वाला क्या जीतेगा। तो इस तरह मतलब ये कि बस मैं यही मशवरा दूंगा कि आप अल्लाह से डरें, अल्लाह रोजी देने वाला है। आप चंद सिक्कों की खातिर किसी की जान की तकलीफ उसकी बेचारे को, क्योंकि अगर ये बोलेंगे हम डिलीवरी नॉर्मल करते हैं लेकिन पैसे ऑपरेशन जितने देंगे तो देने के लिए कौन तैयार होगा, तो कोई कम ही तैयार होगा। तो इस तरह मतलब है कि ये ऑपरेशन करके पैसे लेते हैं, बस पैसों की खातिर ये कर रहे हैं। अगर वाकई इनको कोई बड़ा हेवी चार्ज देना शुरू कर दें तो हो सकता है ऑपरेशन ना भी करेंगे। लेकिन ये भी कैसे हो, हेवी चार्ज देंगे कि आप बोलोगे ठीक है 50,000 ले लो बगैर ऑपरेशन क्या कर दो, तो वो जिसने ऑपरेशन का कहा वो थोड़ी 50,000 में करेगा, और नहीं 40,000 में ऑपरेशन के साथ ही करूं, क्योंकि उसको पता है कि मैंने 50 में अगर ऑपरेशन के बगैर कर दिया तो मैं डिग्रेड हो जाऊंगा, बदनाम हो जाऊंगा। तो ये इज्जत बचाने के लिए उसने अपना ऑपरेशन तो करना है। तो खाली ये मसला नहीं है, और बेशुमार मसाइल हैं कि जिसमें मतलब यानी कि हेवी दवाएं देना, पैसों की खातिर मुख्तलिफ टेस्ट लिख देना जिनकी जरूरत नहीं है, हजारों लाखों के खर्चे में उतार देना, इनके कमीशन डॉक्टरों के बंधे हुए होते हैं, लेबोरेटरियां इनकी फिक्स होगी, दूसरी लेबोरेटरी की जो रिपोर्ट है इसको ये परफेक्ट नहीं बोलेंगे, ये परफेक्ट नहीं है, फुला लेबोरेटरी से जाओ, क्योंकि यहाँ इसका कमीशन होता है, ये रिश्वत है। फुला कंपनी की दवा क्यों उठा लाए, ये सही नहीं है दवा, मैंने जो कंपनी लिखी थी वही ले आओ, जो उसकी तरकीब है कि उसी कंपनी की दवा से उसको मतलब यानी कि कमीशन मिलना है। तो यूं कर रहे होते हैं ये, यानी कि चाहे आपको नजला खांसी हो, चाहे माज़अल्लाह किसी को कैंसर हो, ये जितने भी अमराज है ना, इन सब अमराज में ये गेम चल रहे होते हैं, बाईपास के ऑपरेशन हो रहे होते हैं, क्या क्या हो रहा होता है, और कई जगह इसकी जरूरत नहीं भी होती होगी, और ये छुरियां चला देते हैं ताकि पैसे खींचे, बंदा कल मरता हो आज मर जाए। अपनी जेब भरी रहनी चाहिए, ये अपनी मौत को भूल जाते हैं कि आखिर इनको भी तो मरना है ना। डॉक्टर भी मरते हैं, लेडी डॉक्टर भी मरते हैं, मेडिकल स्टोर वाले भी मरते हैं, दवाओं की कंपनियों वाले भी मरते हैं, सब मरते हैं, लेकिन ये सब अंधे हुए पड़े हैं पैसों के पीछे और लोगों की जानों से खेल रहे हैं। लेकिन जो अच्छे हैं वो अच्छे हैं, बुरे हैं वो बुरे हैं। अल्लाह अच्छों के सदके बुरों को भी अच्छा कर दे, हम सभी को अच्छा कर दे, और मुसलमानों की हमदर्दियां करने वाला कर दे हमको। हम अल्लाह करे कि मुसलमानों के खैर ख्वाह बन जाए, इनके भलाई चाहने वाले बन जाए। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मोहम्मद तुफैल अहमद ज़ियाई हैं, नॉर्मल डिलीवरी का कोई वजीफ़ा इरशाद फरमा दीजिए। इसमें यह कि सूरे मरियम रोजाना पढ़ती रहे, अगर ये नहीं पढ़ सकती तो कोई पढ़ ले, और सूरे मरियम पढ़कर पानी पर दम करे और वो पीती रहे। अल्लाह करेगा तो बीबी मरियम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बरकत से नॉर्मल डिलीवरी होगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मेरा नाम मोहम्मद अनवर है और मैं बाबुल मदीना कराची से बात कर रहा हूँ। अमीर अहले सुन्नत से सवाल है, बाज़ औक़ात बच्चों की विलादत होती है तो उनकी कुछ पैदाइशी कमज़ोरियों की वजह से जो डॉक्टर हैं वो उनको वेंटिलेटर पे डाल देते हैं, और फिर कुछ ही दिनों बाद वो बच्चे जो वेंटिलेटर पे होते हैं तो उनका इंतकाल हो जाता है। तो आपसे पूछना ये है कि आप रहनुमाई फरमा दें कि हमल के दौरान क्या ऐसी हिफाजती तदबीर इख्तियार करनी चाहिए कि जिससे इन मसाइल का सामना ना करना पड़े। जज़ाकल्लाहु खैरा। ये अब बहुत हो रहा है, हमारे बचपन में ऐसा कभी, बल्कि जवानी में भी ऐसा देखा सुना याद नहीं पड़ता, बहुत कम होता होगा पहले।
अब ये बहुत ज्यादा होता है, पता नहीं वेंटिलेटर के लायक वो बच्चा होता भी है या पैसे खींचने के लिए वेंटिलेटर पर इसको डालकर कुछ कर डालते हो, तो भी कुछ समझ नहीं आती। हर डॉक्टर बुरा नहीं है, हर लेडी डॉक्टर बुरी नहीं है इस मामले में कि वो खयानत करते हो, लेकिन दौर बड़ा नाजुक है और पैसे कमाने की सबको हिर्स लगी हुई है। अलबत्ता ये कि एहतियातें इसकी, ये घरेलू इलाज मकतबतुल मदीना की किताब है मुख्तसर सी, उसमें एहतियातें दी हुई हैं, कई एहतियातें दी हुई हैं। बच्चे को शुरू से ही धूप में डाला जाए तो धूप में बड़े फवायद होते हैं। यानी कि सुबह समझो जो सूरज निकलता है, फौरन जब सूरज निकलता है इसके बाद की जो धूप होती है ये बड़ी मुफीद होती है बच्चे बड़े सबके लिए। तो वो कोई 15-20 मिनट के लिए उसमें डाल दिया जाए धूप में। इसी तरह सूरज डूबने से पहले जो आखिरी 15-20 मिनट होते हैं इसकी धूप भी बहुत बेहतर होती है, तो इसमें डाल दिया जाए बच्चों को। वरना अगर धूप नहीं मिलती ना, आजकल बच्चों को भी धूप नहीं देते, तो इससे ये जो बच्ची होती है ना, इसके अंदर एक हड्डी होती है जिस पर वो बच्चे की पैदाइश होती है, तो वो हड्डी से उसका ताल्लुक होता है उस बच्चे का। तो वो हड्डी जो है ना, ये धूप न मिलने की वजह से सुकड़ जाती है और इसकी वजह से ऑपरेशन की जरूरत पेश आती है। ये तफसीलात घरेलू इलाज में आपको मिल जाएगी। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मेरा नाम मोहम्मद जावेद अत्तारी हूँ। मैं हिंद के शहर तलोदा का रहने वाला हूँ। अर्ज है एक सवाल कि अक्सरियत देखा जाता है कि घर के अंदर जो लोग साफ सफाई करते हैं, कोने के अंदर जो मकड़ी जाला गूंजती है, तो मकड़ी जाला गूंजने की वजह से लोग परेशान होकर मकड़ी को मार देते। तो मकड़ी को मारना कैसा है, इरशाद फरमा दीजिए। मकड़ी को मारने में हर्ज नहीं है, जाले भी साफ करने चाहिए वरना तंग दस्ती आती है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। ऐसा क्या करें कि नज़ा के आलम में बंदे के चेहरे पर मुस्कुराहट हो? अल्लाह अल्लाह, अब ये तो साबित तो है अल्लाह के नेक बंदों से कि उनके चेहरे पर मुस्कुराहट देखी गई थी। सरकार मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह के चेहरे पर भी मुस्कुराहट थी इंतकाल के वक्त या इंतकाल के बाद। अब्दुल गफ्फार मरहूम ये दावत इस्लामी के बिल्कुल शुरू के मुबल्लिग थे। तो जब शुरुआत दावत इस्लामी की थी, तो जिस तरह इस वक्त आपका ना हाजी इमरान का दावत इस्लामी में हिसाब किताब है ना, तो यानी कि मैं बोला नहीं आता मुझसे जैसे मेरे बात, तो इसी तरह पहले तकरीबन ये थे अब्दुल गफ्फार। तब दावत इस्लामी छोटी सी थी, इतनी ज़्यादा कि दुनिया में फैली नहीं थी। तो ये पहले तो वो कुछ गाने बोलना और अच्छी आवाज़ थी इनकी, तो जिसको आप पता चला वो शोबिस बोलते हैं। तो कोई ऐसा हिसाब किताब इनका था। फिर ये कि हमारे साथ ही शामिल हो गए और बड़े मतलब मैंने कि यूँ कहना चाहिए कि बहुत मुत्तकी ईसाई भाई थे और छोटी छोटी बातों में मसाइल पूछना और अच्छे नेक ईसाई भाई थे। बेहतरीन नातख्वान, दावत इस्लामी के सबसे बेहतरीन नातख्वान यही थे हमारे पास। और जवानी में बेचारे इनका इंतकाल हो गया। तो इनके इंतकाल के बाद गुस्ले के वक्त मैं गुस्ले में शामिल था, लेकिन मैं इनकी पीठ की तरफ था और मैं ईसाई भाइयों को डायरेक्शन दे रहा था। तो मेरे अलावा शायद सबने ये मंजर देखा और मुझे बताया कि मरहूम जो थे ये जिस तरह जिंदगी में मुस्कुराते थे ना, इस तरह इनके चेहरे पर मुस्कुराहट देखी गई। तो इस तरह ये कि अल्लाह की जिस पर रहमत हो जाए, जिस पर करम हो जाए,
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला सर जी मुझे ये सिर्फ जानना था कि जो कब्र होती है पक्की, यानी कि अंदर से तो वैसे ही कच्ची होती है, अगर ऊपर से भी अगर पक्की हो तो वो भी जायज होता है? कब्र को ऊपर से पक्की करना जायज है। बाहर शरीयत मसला नंबर 8 हाय हाय जिल्द पहली। कब्र के उस हिस्से में कि मैयत के जिस्म से करीब पक्की ईंट लगाना मकरू है कि ईंट आग से पकती है। अल्लाह ताला मुसलमानों को आग के असर से बचाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। खौफे खुदा हो इश्क़ मुस्तफ़ा, इल्म व अमल इस्लाह मुआशरा। खौफे खुदा हो इश्क़ मुस्तफ़ा, इल्म व अमल इस्लाह मुआशरा। फ़िक़्ह शरीयत व तरीक़त का है मजमुआ मदनी मुज़ाकिरा, है मजमुआ मदनी मुज़ाकिरा। मदनी मुज़ाकिरा, मदनी मुज़ाकिरा।